Hi everyone, today I will show the roadmap of the DevOps career. And what's the DevOps? DevOps is development plus operation. So what the definition of the DevOps according to Wikipedia? DevOps is a set of practice that combine the software development and IT operation with the aim to shorten the development life cycle and provide a continuous delivery with a high software quality. सो इसका डेवऑप्स का मेन उद्देश्य है कि शॉर्टन द डेवलपमेंट साइकिल। जो भी हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो उसकी लाइफ साइकिल को कम करना था और क्वालिटी को इंक्रीज करना था। सो डेवऑप्स का मेन उद्देश्य है। एंड देयर इज सर्टेन काइंड ऑफ द स्टेप वी हैव टू फॉलो while that any software development. So just what's the DevOps engineer definition? Let's see what's the definition. DevOps engineer, the kind of the job that helps that organization fasten and reliable software delivery life cycle management. So the life cycle management करने में जो जो इसको रिलायबल और फास्टर बनाता है, इसके पीछे डेवऑप्स इंजीनियर का हाथ होता है। एंड दीज आर द स्टेप्स फॉर रिक्वायर्ड फॉर द बिकमिंग अ डेवऑप्स इंजीनियर. So first one is, and this is the symbol of DevOps. So DevOps development, Ops मतलब operation. So these are the steps. First one is plan, code, build, development, test, release, configure, operation and monitor. So first step, let's talk about the first step. So first step is step 1, learn a programming language. सो आपको अगर डेवऑप्स इंजीनियर बनना है तो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना होगा। ज़रूरी नहीं है कि आपको उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज हो, लेकिन आपको एक लैंग्वेज आनी चाहिए। और आप कोई सा भी एक लैंग्वेज सीख सकते हैं, जैसे पाइथन, जावा, और जो भी चीज़ जो आपके प्रोजेक्ट में ज़्यादा यूज़ होता है, कोई एक लैंग्वेज यूज करें, सीख लें। इस सीखने का मेन उद्देश्य है ताकि आप अदर जितने भी स्टेप फॉलो हो उसको आप समझ पाएंगे इजीली। सो सो दिस वन इज फर्स्ट। कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करने से पहले उसके पहले एक प्लानिंग होती है, तो उस प्लानिंग होती है। एंड सेकेंड वन इज कोड रिक्वायर्ड होता है। सो प्लानिंग हम लोग कैसे करते हैं? ऑन द एक्सेल शीट, and there is so many software available in market for the planning. So Jira software is used in it, and these are the first step for planning and coding. So you have to follow the first step, learn a programming language, any one language you have to learn. And the planning for you use the Excel sheet and the Java software. And let's move on the second steps. एंड सेकेंड स्टेप टू लर्न टूल. सो आपको कुछ टूल को लर्न करना पड़ेगा. सो उसके सबसे पहले आपको सेकेंड जो सेकेंड स्टेप है उसमें कुछ टूल्स आपको लर्न करने होंगे, जैसे बिल्ड करने के लिए अगर आप जावा से ज़्यादा फेमिलियर हैं तो मोवेन ग्रेडल आप यूज़ कर सकते हैं, और अदर और भी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं बिल्ड के लिए, और भी सॉफ्टवेयर होते हैं. एससीएम में सबसे ज़्यादा फेमस जो है वो गिट है. एंड एससीएम क्या होता है? सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट काम होता है, एससीएम को कहते हैं. तो सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट का काम क्या होता है? गिट, एसवीएम, टीएफएस, गिटहब एंड बिगबकेट. So these are the software configuration management tool. And CI/CD. What is CI/CD? CI/CD is a continuous integration, continuous delivery. सो इसका एक एग्जांपल है जेंकिंस. सो आपको जेंकिंस आनी चाहिए कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस डिलीवरी के लिए. एंड कंटेनर, as you know that Docker and Kubernetes is a container. And Kubernetes is you have to learn something, and not very depth, but you have to learn about the Docker, what is Docker, what is use of the Docker, and what is Kubernetes. So you can learn and explore the and if you learn more, then definitely you understand the more about the topic, about the DevOps. And becoming the DevOps engineer, you have to learn so many things. And these are the step 2. And build and development come under this step 2. Let's move on the test.
So after planning, coding, build and development, you have to do the test. Whatever the software you have, whatever the software you build, after that you will test that is working properly or not. Then in testing step 3, so learn to run test from the CMDB CI/CD. सो आपको उसको रन कराना पड़ेगा, जो भी आपने सॉफ्टवेयर बनाया उसको टेस्टिंग करने के लिए आपको कुछ टेस्टिंग चीज़ें आनी चाहिए। CMDB का यूज आना चाहिए, कुछ लिनक्स नाइनेक्स इन सारे कमांड को आपको आना चाहिए। सो ये हमारा स्टेप 3 है। और रिलीज और कॉन्फ़िगरेशन, ऑपरेशन एंड मॉनिटर 6, 7, 8 कम अंडर दिस स्टेप्स। तो स्टेप 4, सो स्टेप 4 में आपको लर्न क्लाउड सर्विस प्लेटफॉर्म। सो आपको क्लाउड सर्विस प्लेटफॉर्म के बारे में लर्न करना होगा। जो भी कंपनीज जो क्लाउड सर्विसेज देती हैं उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, जस्ट लाइक AWS, एज्यूर और GCP, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, ये सारे हमें गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। तो इसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं और इसको ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए। और स्टेप 5 में आपको सीखना पड़ेगा लर्न कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल। सो कुछ कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल होते हैं, जैसे में सेफ, परफेक्ट एंड एनएसवल। सो ये सारे क्या हैं, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल हैं जिनको आपको लर्न करना होगा। स्टेप 5 ये हमारा है। एंड लेट्स मूव ऑन द स्टेप 6। सो सबसे आपको लर्न लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग टूल। सो कुछ लॉगिंग और मॉनिटरिंग टूल होते हैं, उसको आपको लर्न करना पड़ेगा, जैसे नेगोस एंड न्यू रिली। सो ये मॉनिटरिंग टूल है, आप इसको लर्न कर सकते हैं। सो दीज आर द स्टेप, these are the DevOps career roadmap. Hope you like this video. See you in the next one and keep learning, stay motivated.